Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain and I have Dhruv sir with me, and today we are going to discuss a very important video. So as you might have seen from the thumbnail that in this particular video we are going to tell you how we as an institute, as an organization, have performed in the recent prelims examination. Now what is the requirement of this particular video? Why have we come up with this particular video? There are certain reasons behind that, though every year I keep on saying that such things are not required, and but still there are certain reasons. So more than being a claim video, this is more of an accountability and responsibility video. So for students and parents who have invested their time, money and trust in Understand UPSC, this particular video comes out to be an accountability video. That is very important from our part, from our end, to make you understand that this particular institute and organization is student centric and exam oriented. So if we say, so okay, and a disclaimer before I move ahead, I'm not saying that each and every line of every book that we have given you, you need to read that and you need to by heart that and rote learn that. That is not possible and it is not expected out of you, and that is not what we are here to tell. But that being said, the number of pages and the content that we at Understand UPSC ask our students to study is much lesser than any institute. Yet the return on investment of time, of pages is much higher. If you have ever been a part of Understand UPSC and you have felt the same, I would request you to drop a comment telling how this particular thing, the limited content, be it of Focus, be it of Blue Book, be it of our Upsurge test series, have helped you. Also, another thing, before moving ahead, also why this particular thing happens, why is the ROI so high? Because of three reasons. First is experience. This is very important. The entire team that exists here is very experienced in terms of the content that they deliver, in terms of the lectures that they deliver. Then the second point is that we invest in content and talent and not just marketing and gimmicks. And the third point is that we are a student centric and exam oriented institute. Very important again, to be exam oriented. हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि हम बाद में क्लेम कर सके कि देखो हमारे यहाँ से आए, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि एक्चुअली में बच्चों का फायदा हो सके. That is very important. Now I would ask Dhruv sir to begin with the questions that have been overlapped or been completely solvable, partially solvable from the material. Also, we are not including the MAD here. We are not including the questions that are solvable with MAD. क्योंकि वो करेंगे तो फिर सब the haters and all will start crying, है ना, तो वो नहीं करता है. Let us just focus on the content part. MAD apply करेंगे तो फिर सब रोना शुरू कर देते हैं, तो let's not do that. Let's थोड़ा तरस खाते हैं haters पे भी और शुरू करते हैं. Sir, please. So today we'll be running you through our three initiatives that were there that we have tried to cover things from. So first one would be the Blue Books. Blue Books were given out as a part of our Prevail program to our students, to our mentees who were a part of the Prevail program. Blue Books are specially curated, focused on prelims wala content, which was filtered out by the mains content. So prelims ka core content diya gaya tha. So first is Blue Books that we're talking about. Second would be the Focus magazine. Focus magazine was an open for all free initiative that we did on our YouTube. Satyam sir ran the videos and the content team ran the Focus magazine, which was drafted for you. And we got a resounding feedback on it as well because it was very crisp, and the return on investment would be visible for you now. And the third is the Upsurge test series, which was the first of its kind prelims oriented specific MAD applicable test series that we ran as a part of our Upsurge program. And these are the three focus areas that we have covered today, wherein the return on investment would be visible to you. First and foremost, we have taken up the actual prelims paper that came in, and we are doing the question listing for the purpose of accountability and brevity, ताकि सबको ये clear रहे कि किसमें से क्या आया. So first, and we have also on a side note attached if particular thing was completely solvable or partially solvable, or was it just mentioned, ताकि थोड़ी accountability set रहे. So for example, the first question talking about hedge funds and venture capital alternate investment funds की बात करी थी. We have a direct screenshot from our Blue Book page numbers. We have also mentioned the page numbers for the purpose of accountability. If you want to have a cross check reference, you can. So Economy Blue Book, page number 79, we claim this question to be completely solvable. Why? Because, of course, we have discussed venture capital funds, we discussed hedge funds. Apart from that, we have not added the screenshots. We are also talking about the concept of alternate investment funds or AIFs in general. And we also specifically discussed bonds, stocks in our classes as well as in our Blue Book. So, उधर से वो ये solve हो जाएगा. For students who want to understand कि कैसे पढ़ना है इस PDF को, look at this: hedge fund, venture capital fund, alternative investment funds. Now look at this here: venture capital fund, hedge fund, investment funds. तो completely जो चीज यूपीएससी ने पूछी है वो as it is मटेरियल से सॉल्वेबल है. ये इकोनॉमी के लेक्चर्स मैंने ही लिए थे, तो मुझे पता है कि बुक कितनी क्रिस्प है. This is the most crisp content on economy, and you will see कैसे इससे questions आपके repeat हो रहे again and again.
All right. Similar was question number 2, which was around the RBI income sources. Although this is a little debatable, but apart from that, we've covered each and everything. So, for example, looking at buying and selling government bonds, you'll see how we have linked bonds as well in our content. Then printing and distributing currency notes, signorage, etc. All of it was covered. So we also claim this as completely solvable because each and every line of it was mentioned in our directives, right? Third is a sort of a polity based question. So we did cover it in a part of, as a part of our polity blue book, page number 142. Although only one of this, so we talked about enforcement directorate, that is where we have covered it as partially solvable and not completely solvable. This is when DGMS, Directorate General of Systems and Data Management, was one thing that was not so preempted, so we'll not claim that. But yes, this we have talked about enforcement directorate. We also mentioned the ministry, and it has talked about the ministry. So if you just know that it's a part of Ministry of Finance, you can eliminate this easily. Right. After question number 1, 2, and 3, we have moved to question number 6. So in the first part, we are only covering questions from Blue Book. Then we'll cover from Focus and then from Upsearch, right? Question number 6, talking about the Mineral Security Partnership. We've talked about the Mineral Security Partnership as a part of our content in the Economic Blue Book, page number 111, and also Focus magazine, if I'm not wrong. We'll run you through that later. This is a completely solvable question because direct lines can be seen and mapped. Right? Yeah, you can completely see here कि India has joined the Mineral Security Partnership as a member, और as it is उसके context में लिखा है कि India has joined the Mineral Security Network to secure critical minerals. और ये जो second, ये जो third वाला point है, ये भी सीधा सीधा वहाँ पे हमने दिया हुआ है. तो दो चीजें दोनों से as it is ये चीजें repeat हुई है from the Blue Book and from the Focus magazine. तो जो static और current affair के linkage की हम बात करते हैं, आप समझिए इस चीज को. This is a question which is static and current affair both linked. हमने एक में बहुत बार ये बात बोली है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों चीजें हमने आपको प्रोवाइड करी है, स्टैटिक भी उसका करंट अफेयर भी, और इतना ज्यादा रेलेवेंट कि वहां से एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है. चलिए नेक्स्ट. Next is question number 11 from modern history. Talking about Raja Ram Mohan Roy, we have given specific details around Raja Ram Mohan Roy as a modern history Indian personality. That is why we also covered it on pages 105 and 104 of Modern History Blue Book, and we are talking about it at being completely solvable because you can directly draw references from the rationality, scientific approach which are mentioned in our content. यस एब्सोल्युटली डायरेक्टली दे रखा है कि वेदास को बंगाली में ट्रांसलेट किया, तो ऑब्वियसली जो, और यहाँ पे लिखा भी है प्रोपोगेट द मोनोथिस्टिक आइडियाज ऑफ वेदांता, और यहीं पे सेम बात लिखी है कि ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट मतलब इंडिया को इन्होंने फुलफिल किया था. तो एग्जैक्टली जो फर्स्ट लाइन है वही फर्स्ट लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि कैसे उसी कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन. The good thing about our content was also this, we also mentioned as a side note कि already prelims में पूछा जा चुका है. It's a PYQ, so it becomes all the more important. और वहाँ पे हम बोल्ड भी कर देते थे उसको, so this is a sample of that. Perfectly said. Next question is on NCM, which is the non-cooperation movement or non-cooperation program that was asked. Again covered as a part of our modern history blue book. Although we have claimed it as a partially solvable thing, but थोड़ी सी भी अगर common sense होती तो हम इसको completely easily solve कर देते. We just needed to know the ethos of NCM, which was very well covered. कि खादी promote करते थे, boycott of British, जितनी भी चीजें थी, we focused on Swaraj, there was mass participation. These were the features of the NCM that we explained in our content and classes, and directly उससे आप infer करके कर सकते हो. For example, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, but that's again a part of MAD. That is the only reason we have claimed it as partially solvable. Otherwise, this was very easily doable. Very easily, but still, for the sake of ethics, we have claimed it to be just partially solvable. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next is a direct question from our blue book. आप देखोगे अराघट्टा CSE 2016 mentioned also कि ये पूछा जा चुका है, and as it is इस साल पूछ लिया गया. It's a Persian wheel used in irrigation and only ये बैग था, ये व्हील था, ये पॉट था और ये बकेट था, और सीधा सीधा व्हील से इसका आंसर आ गया. यस, मोर ओवर जो हमारी मैथ प्लस की पीडीएफ थी उसमें भी एज इट इज कवर्ड था वाटर व्हील यूज इन इरिगेशन एंड अगेन व्हील. तो दो जगह ये पर्टिकुलर चीज कवर्ड थी बिकॉज इट वाज ऑब्वियसली अ पीवाईक्यू. तो हमने उसको अपने कंटेंट में हमेशा यूज किया बिकॉज आप देखेंगे भी तो इसके आसपास भी वही चीजें लिखी हुई हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड और पीवाईक्यू ओरिएंटेड थी. चलिए लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे भी देखेंगे तो आगे भी वो उस पर्टिकुलर चीज में पूरा का पूरा मेंशन्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. अगेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक दिन पहले ही शायद हमने YouTube पे तो ऑन आवर लाइक वैसे तो वो पूरा का पूरा ब्लू बुक में है. आर्ट एंड कल्चर तो आपको पता है कि मतलब इट इज अ वेरी फैक्चुअल थिंग, बट स्टिल इफ यू लुक एट हियर मत्त विलासा प्रहंस one act Sanskrit play by Pallava king Mahendra Varman first. So as it is one liner as it is 2 marks in the examination. Also अगर आप देखोगे तो हमने अपने जो YouTube चैनल Instagram चैनल है उस पे अर्ली मिडाइवल वर्क्स डाले थे एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, और उसमें सबसे पहला वर्क यही था मत्त विलास परहंस
एंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट एज इट इज। तो दो दो तीन तीन जगह से सॉल्वेबल है यूपीएससी का क्वेश्चन। Next question is on Fahim, although a very standard question, but still, of course, standard material भी cover करा हुआ था. Directly in the blue book, page 73, will completely solvable. Fahim Yes. came during the reign of Chandragupta II, and Chandragupta II, Fahim was directly mentioned. As it is लिखा हुआ है, and again the thing here to understand is that yes, it is a very core question of history, but that is the point ना कि आप बच्चों को ऐसा कंटेंट दो, 6 एनसीईआरटीज हैं यार, उसके बाद आर एस शर्मा है, उसके बाद नई नई बुक्स हैं, बट हमने वो पूरे को, और लाइक टू द एंटायर क्रेडिट ऑफ द टीम हियर, द कंटेंट टीम है ना, मेरा कुछ नहीं है इसमें, द कंटेंट टीम हैज वर्कड डे एंड नाइट फॉर दिस। तो पूरा पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है, बी इट नितेश, बी इट प्रज्वल, बी इट रोहित, बी इट सक्षम सर, पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है फॉर डूइंग दिस, है ना, टू दीपिका, to like all the people who are associated, उनको जाता है पूरा का पूरा credit, to Neeraj, to Neha ma'am for managing this entire thing, this entire blue book and making it such a beautiful one single source of the entire portion. Let's quickly move on to question number 16. आपने देखा 14, 15 अब 16 पे आ गए हैं. Again, directly solved by the ancient history book. Blue book, Rajendra Chola 1 is the answer to this question कि किन्होंने कहाँ पे क्या रन किया था. And yes, so this is also directly covered in the blue book part. As it is line है, led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, led a successful military campaign against Srivijaya kingdom. So as it is solvable from blue book, completely solvable. Let us move to the next question. Question number 17, ये यहाँ पे टेरिटोरियल रीजन्स थे और उनकी रिवर्स थी. आप देखोगे नीचे भी, आई थिंक वी कैन स्क्रॉल डाउन एंड सी दैट एज वेल. सारी रिवर्स और ऑफ इवन फॉर ऑल द 4 टेरिटोरियल रीजन्स. इट्स वेरी टफ की कवर करें, बट यस, दिस इज अमेजिंग. ये मतलब दिस इज अ टेस्टामेंट टू द काइंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट वी ब्रिंग ऑन टू द टेबल. अगर आप देखोगे तो शायद ही आपको मिलेगा कि किसी एक बुक में ये सब कवर्ड हो, बट लुक एट इट हियर. अस्माक एज इट इज कवर्ड, कंबोज आपको नीचे दिखेगा, अवंती एज इट इज कवर्ड, कौशल देश एज इट इज कवर्ड. तो और रिवर भी कौशल के साथ सरयू रिवर आप देखोगे तो मतलब दिस इज रियली रिमार्केबल. हालांकि स्टिल बिकॉज हमने एक पर्टिकुलर कंबोज की रिवर मेंशन नहीं करी थी, इसलिए हम इसको पार्शियली सॉल्वेबल बोल रहे हैं, बट if any student will see, they will be able to understand that this is just amazing, literally brilliant. Let's move ahead to the next question. जैसे मैं बोल रहा था आपको, कंबोज का हमने बस रिवर मेंशन नहीं की थी, that's it, else it was completely understandable. नेक्स्ट इज प्रदेश का राजुका युक्ता के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल. वी अगेन as it is claimed them to be district level officials, and this will in all probabilities be the right answer as well. So yes, again from ancient history blue book, page number 60. We have now switched subjects, moving to question number 25, which is a part of geography. Talked about continental drift in its entirety और उसके कौन-कौन से features क्या-क्या हैं, उनके evidence क्या है. If you see tellite deposits, placer deposits, all of them being the evidences, distribution of fossils, etc. And this, all the 3 have been mentioned, and you can correlate them, and it will become a fully solvable, very easy question. Perfect. जैसे deposits, gold deposits, तो आप देखोगे तो placer deposits, rich gold placer deposits. As it is world by world चीजें आई हैं ज्योग्राफी की ब्लू बुक से. Again, NCERTs काउंट करो 6 से लेके 12 तक की, GC लोगों को अलग से काउंट करो, स्टैंडर्ड बुक को ये लोग पढ़ते हैं उसको अलग से काउंट करो, एंड वी हैव समराइज्ड इट इनटू अ वेरी क्रिस्प बुक. और ये अंकिता मैम ने पढ़ाया था, उनके लेक्चर में से एज इट इज निकल के पर्टिकुलर कंटेंट आया है. अमेजिंग पोर्ट्रेल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is talking about the temperature drops and the contingencies that might happen in the absence of atmosphere, and what are the things. Again, directly covered as a part of our blue books. यहाँ पे हमने समझा रखा है कि what is the significance of atmosphere, what will happen if it's not there. So, for example, life support, तो life चली जाएगी अगर वो नहीं होगा. So again, has to be completely solvable from our geography blue book, page number 75. Perfect. Quickly moving on to question number 31. I think we've skipped 30. We'll cover that later. 31. Economy blue book, page 110, talking about carbon dioxide emissions और ये सब. So if you have a look at it, यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया हुआ है primary raw material used in cement industries, limestone, gypsum, और वहीं आप देखोगे silica bearing clay. तो yes, again this is a partially solvable thing, of course, because we did not cover all the 3 statements, plus उसकी reasoning match करना मुश्किल था. That is why we framed it as partially solvable, but would have been easily done from our content. If you just look at this particular thing, तो हमने exactly बताया कि कितना परसेंट क्या चीज अवेलेबल है, वो तक उसमें mentioned है, which makes it all the more very important. Why? क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में कवर था और हमें पता था कि इकोनॉमिक सर्वे से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाई वी पिक दैट पर्टिकुलर थिंग. समझो बात को, डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्चुअल कोर एक्सपीरियंस, है ना. अगर अभी भी समझ नहीं आएगा तो फिर आई डोंट नो आपको कब समझ में आएगा, बट come out of the hate that people spread and understand the quality that we deliver. वो समझना बहुत जरूरी है. And thanks to the students who have believed in us and to the amazing response that we have got. हमारे ऑफिस और क्लासरूम्स भरे हुए हैं उस दिन के बाद, जिस दिन के बाद प्रीलिम्स हुआ है. तो हाथ जोड़ के आप लोगों को शुक्रिया है for the kind of hard work that you have put in these 5, 6, 4 months with us and for the quality that we have delivered. Thank you.
Now we'll move on to question number 34, talking about the Article 6, covered as a part of a focus magazine. बहुत ही ज़्यादा current में था, तो we also tried to cover it, talked about how market as well as non-market approaches are covered, and we've also talked about how it's an important PYQ from CSE 2016. उसको bold भी करा हुआ है कि COP21 एक बहुत ही important theme बन जाता है. Also क्योंकि उसके 10 साल पूरे हो रहे थे, ये भी हमारी blue book में mention था, and that is why yes, we could have solved this question easily. Yes, लोग बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए पता नहीं कितना ज्यादा वक्त लगेगा और कितने ज्यादा क्लासेस लगेंगे, बट इफ यू लुक एट इट हियर, एनवायरनमेंट मैंने खुद ब्लू बुक से से पढ़ा है, फोकस मैगजीन से, और अंकिता मैम ने ब्लू बुक से पढ़ा है. इतने इतने पतली सी मैगजीन, इतने इतने पतली सी बुक, एंड एज इट इज आर्टिकल 6 हैव बीन रिपीटेड एज इट इज. टीम ने बोल रखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, यहाँ से भी स्टेटमेंट आया है, और टीम ने बता रखा है कि भाई 10 साल हो गए तो ये इंपॉर्टेंट है. दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Next question is question number 40, talking about rainforest और किसमें कितना परसेंट ये है. Again, directly covered as a part of our blue book, and you could have extrapolated it, although we are claiming it is partially solvable again because यहाँ पे exactly wordings और plus percentage की बात नहीं करी थी, but a definite idea on what phytoplanktons and the percentages of oxygen etc would be, you would be able to zero down on the answer. Yes, we are claiming it partial solvable क्योंकि because हमने यहाँ पे परसेंटेज कितना ऑक्सीजन का वो नहीं बताया, बट जिनको मैथ समझ में आता है, जिनको समझ में आता है कैसे सोल्व करना है, हमारे जो कोर्स स्टूडेंट है वो इसको बहुत आराम से खींच के लेके गए होंगे. जितना नॉलेज का पार्ट था वो हमने बता ही रखा है. लेट्स मूव अहेड. Next question is on coal gasification. We have not claimed it as either partially or fully solvable, Yes. just because coal gasification में पढ़ाया था. So we've claimed it as a mere theme only for the purposes of ethical brevity. अब उसमें coal gasification ने समझाया था क्या, अगर उससे solve हो सकता है तो हो सकता है, and that is why apart from that it's an application based question, and of course. हाँ, और हम इसको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारे पढ़ाई में से आया है या फिर नहीं आया है, कि भाई इसमें से ये स्टेटमेंट नहीं आया वो नहीं आया. नहीं, हमने ये नहीं बताया था कि ये पर्टिकुलर चीज कहाँ यूज होती है, नहीं बताया था तो नहीं बोल रहे हैं, है ना. बस थीम ये वाली थी, और दैट इज वाई फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, कि हमने बता दिया कि भाई ये बस थीम बताई थी हमने. वी आर नॉट सेइंग कि ये कंप्लीटली पार्शियली सॉल्वेबल था. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ये हमारे 1 साल की मेहनत है. सिर्फ पहला साल था अंडरस्टैंड यूपीएससी का. ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप देखोगे कि कोई 2023 की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है, नहीं, सिर्फ 1 साल की मेहनत है पूरा का पूरा. सो दैट इज व्हाट द क्वालिटी स्पीक्स अबाउट. ओके, लेट्स मूव अहेड. Next is question number 49. ये viruses पे है, तो we've talked about what are retroviruses etc. Science and Tech page 7 और प्लस मैट PYQ डॉक्यूमेंट से भी हमने इंक्लूड किया था, क्योंकि 2016 में सिमिलर थीम पे वायरसेस पे क्वेश्चन आया हुआ था, एंड द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी सिमिलर कि नो वायरस एग्जिस्ट देयर, नो वायरस एग्जिस्ट देयर, तो उससे सॉल्व हो सकता है. ऑल्दो वी आर स्टिल क्लेमिंग इट एज पार्शियली सॉल्वेबल, क्योंकि मैट लगता ही लगता है इसमें, बट यस, क्योंकि सिंपल अगर ये वाला स्टेटमेंट देखोगे तो ये तो एज इट इज यहाँ से पिकअप कर लिया इसने. बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस, ऑलरेडी कोई वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और वही चीज ने यहाँ पे दे रखी, तो ये स्टेटमेंट तो एज इट इज यहाँ पे रिपीटेड ही है. बाकी इसमें से समझ के आप ये वाले स्टेटमेंट्स को भी कर सकते हो, बट स्टिल वी आर क्लेमिंग इट एज पार्शियली सॉल्वेबल, ना कि मैट सॉल्वेबल, जबकि मैट से तो ये कंप्लीटली सॉल्वेबल है. किसी भी स्टूडेंट ने गलती नहीं किया होगा जिसने मैट लगाया होगा, बट स्टिल नॉट क्लेमिंग इट एज आवर थिंग बिकॉज हम कंटेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Next is an activated carbon question. We are completing as a completely solvable because environment blue book page 53 में as it is discuss हुआ गया था. Talked about the benefits also, talked about the reasoning also. That is why. Yes, as it is a completely solvable question, you can go through this particular PDF. You'll get this particular PDF in your like in the Understand UPSC application. You can go and download it. You can check it. आप अगर देखेंगे तो एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में रेमिडिएशन ऑप्शंस में बात कर रखी है, उसी पे क्वेश्चन है. एज इट इज वो पर्टिकुलर वर्डिंग्स, वो पर्टिकुलर इश्यूज यहाँ पे कवर्ड है. दिस इज अ कंप्लीट सॉल्वेबल क्वेश्चन, जो कि सो कॉल्ड बहुत ही ज्यादा टफ था और लोगों के पढ़ाई में से नहीं आया है. Next is question number 51. We move to polity now. Polity, तो yes, of course, polity blue book was a very hit, very big thing when we came out with it as well. Very positive feedback. So thank you for that. And yes, you can see directly questions being hit from there. You talk about how you can eliminate statement 2, will directly get the answer. And we have mentioned about statement 2 as well in our blue book. आप उसको eliminate करोगे, आंसर पे पहुंचोगे, completely solvable. Yes, just एक चीज जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वही यहाँ पे आ गया है. आप उसको एलिमिनेट करोगे and you get to the answer, and it is as simple as that. Next is question number 53, talking about the provisions of the constitution के basis पे कौन कौन सी constitutional body है. So we've talked about how zonal councils are statutory, ठीक है, तो इसलिए you eliminate that. We have talked about how interstate council is a part of the article, so it becomes constitutional, and national security council of course not mentioned in the constitution. So you arrive at the answer directly. I would like to tell something, क्योंकि ये जो ब्लू बुक है मैंने पढ़ाई थी, तो I still remember reading this particular line and saying कि याद रखना एग्जाम में, ये मैंने बोला है लेक्चर में, याद रखना जोनल काउंसिल को करके बोलेगा कि जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन होती है, नहीं, आपको गलत मारना है, स्टैच्यूरी है. आज भी वो लेक्चर अवेलेबल है. टीम ने लिख रखा है बुक में कि रिमेंबर इन क्वेश्चन इफ गिवन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बी केयरफुल इट विल बी रॉन्ग.
as it is a thing and as it is covered and as it is asked by UPSC इसी साल पूछ लिया जिस साल हमने पढ़ाया और as it is लिखा है तो kudos to the team for doing such an amazing work. Brilliant, like so proud of the team for this year. Next is question 54, talking about the powers of the governor and the president. Talked about how discretionary power in the constitution of governor are mentioned. What are the discretionary powers? Also told about how it's important as it's a UPSC PYQ. It's also UPSC के other exam का PYQ. तो वो पूरा उसी से question आया है and you can solve it easily. It's also as in CDS 2018. This is the quality of the blue book that you're providing. We've also covered the other Yes. UPSC exams के PYQs. Not just CSC but CAPF भी CDS भी सब कुछ covered है. तो मैंने पहले भी बोला भी था पर्टिकुलर चीज अपने प्रीवियल के लेक्चर में कि भाई हम सब कुछ कवर कर रहे हैं. उसके बाद एक DPSPs and FRs and FDs का क्वेश्चन है covered under respective topics in blue book. It's a very standard thing. तो obviously yes, we और have ये also सभी कवर करेंगे. लक्ष्मीकांत से लेके कॉन्स्टिट्यूशन सब कवर करते हैं. ऐसे नहीं कि कुछ हमने बहुत बड़ा यहाँ पे तीर मार दिया. तो ये आपका DPSP फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी सब कुछ कवर्ड है. हमने भी किया है एज इट इज वेरी सिंपल. Next is question 56, talking about the fifth schedule areas and powers. कि state government और union government का क्या role होता है? Mentioned on two separate pages, 114 and 124 in the polity blue book. Talked about fifth schedule features. Look at it, CSC 23, 23, 23. That is where it becomes important. Also as in CSC 22. And then we've talked about the PISA Act, जो fifth schedule areas, not to extend it to the scheduled areas वाला है. तो उससे ये आंसर हो जाएगा. And this becomes a completely solvable question as well. सर ये पढ़ाते हुए रिमेंबर टेलिंग स्टूडेंट्स की फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान से पढ़ना. जब बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा बिकॉज ऑफ द पैटर्न एंड द ट्रेंड दैट वी ऑब्जर्व द यूपीएससी. और यहाँ पे एज इट इज चीज हमारे सामने हो गई है दैट वी हैव सीन. Next is question number 58, talking about the subjects and the lists. कि उसमें constitutional amendment किस किस में चाहिए. So we have beautifully made a table explaining किस में कौन सी type की amendment चाहिए. And I remember you taking it up in the classes as well. Yes. So yes. और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कई बार लक्ष्मीकांत में क्योंकि वो लीनियरली दिया हुआ है. लेकिन हमने इसको टेबल फॉर्मेट में दिया था और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था. और हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे यू कैन फाइंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 59. Question number 59, talking about the powers of a governor, immunities and privileges enjoyed by the governor and the state legislatures. Again, directly covered in the polity blue book. You see, talking about how immunity from criminal proceeding was also a PYQ. We have mentioned that in the bold as well. Talked about the conditions of office. Also talked about how it was a 2018 PYQ as well. Becomes important and we've covered it. Yes, absolutely. PYQ based. And we have covered it. आप देखेंगे जो भी चीजें हैं, even if you are talking about parliamentary privileges, तो वो भी covered है. सब कुछ, everything has been covered in the blue book itself. Next is question 61. ये primary deficit, fiscal deficit और revenue deficit पे था. Although this was very conceptual in nature, but we took it up in our classes as well as in the blue book, explained you with formulas and examples in the classes by sir as well. And all the three was would have been easily solved. यहाँ पे fiscal deficit दे रखा है, यहाँ पे revenue दे रखा है. Primary also we have covered it in the latest stages. Yes, which is here. नीचे इसका पूरा फॉर्मूला देके आई स्टिल रिमेंबर सॉल्विंग इट इन द क्लास और लिख के बिल्कुल कि 100 होगा 20 होगा तो कितना आएगा ऐसे करके इसको पूरा सॉल्व करवाया था. एंड आई वाज वेरी हैप्पी सीइंग दिस इन द क्लास कि And हमारे not बच्चे just one, there were two direct questions on the same formula. यस तो दोनों के दोनों है ना, दोनों के दोनों से सॉल्वेबल है. प्राइमरी डेफिसिट एज इट इज हमने कवर किया है, फॉर्मूला लिख के कवर किया है. एंड अगेन द क्वांटिटी वाज वेरी लेस. Next is ancient history का dancing girl question, although सभी पढ़ते हैं, but of course it's a UP. हमने ये अब you have look at the beauty of it. We've also covered that it's a UP PCS 2017 question. क्योंकि ancient history में if you have a look at it, state PCS के factual things are also becoming relevant for UPSC these days. That is why we've covered it. And you look at it, dancing girl bronze directly mentioned है, dancing girl bronze, and that's the direct answer that you'll get. यस साथ साथ में अगर आप देखोगे तो यूपी पीसीएस में जो पैरेलली जो भी क्वेश्चन वहां से कवर्ड है वो हमने मेंशन कर रखा है. अगले साल क्या पता ये आ जाए, यू नेवर नो. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज अंडरस्टैंड कि पीसीएस के क्वेश्चंस भी, पीसीएस के थीम्स भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं जो रेलेवेंट है. ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया के सारे पीसीएस, नो. बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट, वी हैव कवर्ड दैट हियर एंड the result is completely in From everybody's. question 72, we move on to question number 74, talking about the pacts and the answers. So the Pune Pact, we've covered it in detail. We've explained the reasoning, the logic, the ration, the provisions, the impact, and the negotiations that took place. And the direct answer could have been achieved from the content and the context given in the question. Yes, completely solvable, totally solvable a question. Then the self-respect movement. Self-respect movement, who edited Periyar E.V. Ramaswamy Nayakar, E.V. Ramaswamy Nayakar, or Periyar. Self-respect movement, and a part of CSE 2021 as well. Sharo keywords all covered here, and Yes. CSE 2025 may repeat over. As it is covered keyword by keyword, even both the keywords, the actual name and the alias, both have been covered here. Next is talking about the pardoning power of the president. Both the statements have been covered as well.
in our polity blue book, और ये उससे completely solve हो जाता है. Exercise of the power is limited to subjective limited judicial review, or they can exercise without the advice of the central government. Talking about the pardoning power, Article 72 पूरा यहाँ पे explain करा हुआ है. Next is on the provisions of the speaker, constitution, etc., etc. Again covered at the respective places in the blue book, page 61, page 142, सारा covered है. Completely solvable because all the three statements have been covered elsewhere in the polity blue book. यस आप सीधा से देखेंगे कि अगर इलेक्ट हो गया तो मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करनी, मतलब मेंबरशिप नहीं गिव अप करनी पड़ती, आप रीज्वाइन कर सकते हो देने के बाद, तो बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे कवर्ड है एंड दिस इज डायरेक्टली सॉल्वेबल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question 98 on Lokpal. We have covered Lokpal in detail from in the polity blue book, page 142. Again, we are claiming it is a partially solvable thing because it did not cover the 45 years age वाला thing. ये थोड़ा सा in depth act में जाकर पूछा गया था, इसलिए हमने partially solvable किया. Apart from that, all the other statements were well within the reach of the तो student who has किसी read एक भी क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया है कि नहीं जस्ट बिकॉज इतना सारा लोकपाल पे लिखवाया है हमने, आप मुझे एक भी इंस्टीट्यूट बताइए जो ऐसे नहीं बोलेगा कि लोकपाल कंप्लीटली सॉल्वेबल है. नहीं, हमें नहीं करना बच्चों के साथ. अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं आपको ये पढ़ने की नीड नहीं थी इसलिए हमने नहीं पढ़ाया है, आज आके हम बोलते हैं कि नहीं 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 आपको पता होना चाहिए कि 45 ईयर से कितनी सिंपल बात है, लोकपाल तो हमने पढ़ा है. अरे फिर तुम पढ़ा लेते ना कि 45 ईयर्स है, नहीं पढ़ाया हमने तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे कि आपको उसको पढ़ने की नीड है. यूपीएससी पूछ रहा है तो वो बहुत चीजें पूछ सकता है. ये 45 ईयर्स पता होने की वजह से आपका एग्जाम क्लियर होना है रुकेगा नहीं, है ना. जितना यहाँ पे बताया गया दैट इज मोर देन इनफ. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड फोकस अपॉन व्हाट वी आर टेलिंग यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 94 जो साइंस एंड टेक की ब्लू बुक में कवर किया गया था, पेज नंबर 145, टॉकिंग अबाउट गगन. गगन के बारे में पूरा एज इट इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन, उसके सारे पॉइंट्स है, इंटरऑपरेबिलिटी वगैरह की बात करी हुई है. If you have a look at it, all the 3 points can be solved. This will become wrong because other जगह भी वो बताता है and we have talked about interoperability, उससे solve हो जाएगा, completely solvable है. सर ऑफिशियल सोर्सेज से उठाने का कितना फायदा होता है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप विद एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी एज इट इज सर वर्ड्स है यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. तो बिकॉज यूपीएससी ऑफिशियल सोर्सेज से पिक करता है, हमने भी वहीं से पिक किया है एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द साइंस एंड टेक ब्लू बुक एट द साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स ऑल्सो. इसकी लगभग हर एक क्वेश्चन इतनी पतली पतली साइंस एंड टेक की ब्लू बुक और साइंस एंड टेक की फोकस मैगजीन से कवर्ड है. आई एम लाइक सैल्यूट टू द टीम हियर फॉर डूइंग सो सच एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एफर्ट. Next is talking about the panchayats and the intermediate level वगैरह. Again covered at the respective places in the blue book, 110, 13 and 14, well within the reach of the 5 pages, completely solvable. सारी चीजें उसमें covered है कि ये गवर्नर करते हैं. So the governor of a state shall constitute a finance commission. Again, chief minister था, इसको eliminate करते हैं and you also arrive at the answer directly as well. Yes. मतलब not correct है वैसे तो, but yes, you would have easily been able to do it. यहाँ पे limits भी दे रखे हैं कि all states इसलिए नहीं होगी क्योंकि state की population limit है. Yes. आपको बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 31 यहाँ पे, and we have also mentioned 21. इसे 30 इयर्स लिखा है और हमने वहां पे 21 दे रखा है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स कंप्लीटली गिवन फॉर ईयर, इसलिए लिखा है पे कंप्लीटली सॉल्वेबल. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. All right, this is talking about the minor and the major minerals. Asked in CSE 2019, तो एक important theme बन गया था. That is why we covered it in the Geography Volume 2, page 82 as well. Completely solvable क्योंकि as it is एक बार PYQ भी आ चुका है, हमने अपने content में भी इसको cover कर दिया. हाँ सर, अगर आप देखेंगे तो the central government has the power to notify minor minerals under the relevant law. The center has the power to notify minor minerals under the MMDR Act. Sir, Not as even it is. mentioned relevant law, as it is law ही mentioned. Sir, as it is यहाँ पे हमने उठा के दे रखा है, तो this is absolutely an amazing thing. तो yes. Next is the 10 schedule anti-defection वाला. Again directly covered on a singular page in the polity blue book. और CSE 22 में भी आ रखा है, तो इसलिए मैंने बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है और इससे ADL से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. Who decides it? It's the speaker. Yes, so it is directly simple and directly given here. You can just have a look and you will be able to. Question 83 talking about microgravity research. ये तो बहुत ही कम लोगों ने, I think SpadeX was very least covered in the other content as well. तो उसकी इसलिए हमने क्लेम नहीं किया है, but we have talked it about as being a theme because we have tried to cover some things out of it. So example गगनयान हमने कवर करने की कोशिश करी है. Axiom भी कवर किया है सर. Yes, Axiom भी करा. SpadeX. ये SpadeX वाला वो था, और जितना मुझे याद है SpadeX मैंने उसमें फोकस में कहीं तो मैंने पढ़ाया था SpadeX, बट somehow शायद इसमें नहीं है. बट एज फार एज आई रिमेंबर मैंने SpadeX तो कहीं ना कहीं डिस्कस किया था, या तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिस्कस किया था. बट खैर चलिए, स्टिल हमने यहाँ पे सिमिलर थीम मेंशन किया है. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली वी वर नॉट टॉकिंग, या फिर स्पेसिफिकली हमने वो SpadeX वाला जो पॉइंट है, माइक्रोग्रेविटी वाला जो पॉइंट है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था. तो हमने एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं ठीक है, ये यहाँ से सॉल्वेबल नहीं है, ये सिर्फ थीम वाइज हमारा रिपीट हुआ है. चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 82 83, अभी 83 कर रहे हैं, 82 है. टॉकिंग अबाउट द नेशनल रेलवे प्लान, उसमें कवच वगैरह क्या है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कवच, वी हैव कवर्ड इट वेल इन डिटेल, उसी से सॉल्व हो जाएगा.
and this is a positive thing. चलो ये तो MAD is separate, but I think we were able to solve this question easily if you know what कवच is. हाँ सर, मतलब कवच और वो तो कवर्ड ही है इसमें, बाकी अगर कोई मैड को काउंट करने लगेगा तो ये लिस्ट बहुत ही दूर तक जाएगी, बट ठीक है, चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is the direct सर ये mapping. ब्यूटीफुल है सर, इसको आप एक्सप्लेन करिए प्लीज। नेक्स्ट इज डायरेक्ट हमने कैसे निकल कहाँ मिलता है, यू हैव अ लुक एट इट। इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया हमारी ब्लू बुक में मेंशन था, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द ऑप्शंस। लिथियम वेयर डू यू फाइंड इट, वी हैव मेंशन बोलिविया अर्जेंटीना चिले, यू फाइंड चिले हियर। डायमंड रशिया बोत्सवाना कनाडा, यू हैव बोत्सवाना हियर। सर आई स्टिल रिमेंबर, मतलब आप आई स्टिल रिमेंबर टेलिंग स्टूडेंट्स कि भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा वर्ल्ड से कि कहाँ ये पर्टिकुलर मिनरल मिल रहा है, और आप कुछ भी मत रट के जाओ। एंड सर like to my surprise this was exactly given in the book and exactly asked by UPSC, like amazing sir, मजा ही आ गया देख के। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, बस ये पता होना चाहिए कि साइबेरिया किधर और अलास्का किधर है, एंड द कॉन्सेप्ट दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन द क्लासेस कवर्ड ब्यूटीफुली, उससे बहुत इजीली आंसर हो जाता है। ये सर एग्जैक्टली बता रखा है कि वेस्ट से ही जाएगा तो क्या होगा, ईस्ट में जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल पूरा का पूरा बता रखा है क्लास में। नेक्स्ट इज IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एज इट इज उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, समझा रखा है, पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंप्लीटली सॉल्वेबल फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ब्लू बुक पेज नंबर 149। नेक्स्ट इज अराउंड द स्टेट एंड उसके रेस्पेक्ट में कोई भी कितने डिस्क्रिप्शन दे नेशनल रखा है। पार्क्स हैं, तो वी हैव क्लेमिंग इट इज पार्शियली सॉल्वेबल, क्योंकि ये पार्ट सी वाला नहीं कवर किया था हमने, Yes. बट ये अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, वाज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट ब्लू बुक। सो यस, पार्ट ऑफ भारत दर्शन also है ना, तो वो भी सब बच्चों को याद होना चाहिए कि भारत दर्शन में पढ़ाई गई ये वाली चीज, तो उसके लिए तो भारत दर्शन कंटेंट टीम को भी बहुत बहुत मुबारक। नेक्स्ट सर आपने शायद लाइव क्लास में कवर किया था, आप इसको मैथ में यस दिस इज लाइक ये वाला क्वेश्चन और एक और वो क्वेश्चन था, तो लाइक आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा, इसमें तो डाला ही नहीं है शायद इन्होंने वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट। वो शायद फोकस वाले में हम कवर करेंगे। यस यस यस, आई विल शो दैट इन द फोकस वाला, मैं इसको फोकस वाला में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना देखो कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एज इट इज पब्लिक डोमेन में है, एज इट इज यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज रिपीट हुई है। बट वेट, व्हेन आई गो टू द फोकस मैगजीन एंड आई शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग, तब एक्चुअली में देखने को मिलेगा कि क्या लाइक कंटेंट में इन्वेस्ट करने का और एक्सपीरियंस की कोई भी काट नहीं है दुनिया में। तब आपने इसमें बोला था कि बस ये मैजोराना 1 डैश माइक्रोसॉफ्ट याद करो, Yes, आगे sir. बढ़ो, एंड Amazon वेब यू जस्ट वेट इट एंड यू अराइव एट सर एज इट इज लिखा हुआ है, नीचे आएगा कि मेजोराना 1 चिप और इसके सामने बस माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। मैंने ये बोला है सर लेक्चर में कि ये पर्टिकुलर कंपनी पूछ सकता है, इसको याद करके जाना, और एज इट इज पूछा है सर। तो and you eliminate this and you also arrive at the answer directly. यस सर, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, करंट अफेयर इज समथिंग जो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा बल्कि नोट्स, बल्कि हैंडआउट्स, पूरे पूरे साल के कोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के। तो ठीक है, फोमो में आप ज्वाइन करते हो, आप हजारों रुपए स्पेंड करते हो, बट वी टुक इट एज अ पार्ट ऑफ आवर फ्री क्लासेस। और शायद ही कोई करंट अफेयर क्वेश्चन है जो किसी के में से भी नहीं आया, जो बहुत ही रैंडम है, उसको छोड़ दें अगर, तो शायद ही कुछ ऐसा है जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। 50 पेजेस की इतनी पतली पतली फोकस मैगजीन थी करंट अफेयर की, और वहां से चीजें कवर्ड हैं। सो लाइक फीलिंग रियली प्राउड एंड इमोशनल राइट नाउ। Next is how many of them contain plastic. We are claiming it as partially solvable क्योंकि हमने यहाँ पे आई ग्लास लेंसेज को कवर किया है, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू एम्फसाइज द Yes. इंपॉर्टेंस ऑफ मैड हियर। कोई मैड वाला बच्चा इसको गलत नहीं करके आया हुआ, आई कैन गारंटी दैट, बट स्टिल चलो ठीक है, हम पार्शियली बोलेंगे क्योंकि पार्शियली था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next is on direct air capture. Direct air capture was again discussed as a part of the carbon capture technology. इसको क्लास में हमने थोड़ा सा कवर किया था environment की। We again claim it as partially solvable क्योंकि as it is statements नहीं थे, but अगर essence of direct air capture मतलब कार्बन sequestration भी समझ में आता तो I think we would have been able to solve that. मतलब सर इतना तो समझ में, देखिए इतना तो दे रखा था हमने कि कैप्चर करता है CO2 को डायरेक्टली एयर से, और उसको स्टोर भी करता है, यूटिलाइज भी करता है, और वही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की डेफिनेशन होती है। हमने बहुत बार समझाया, डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज मिल जाना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये थीम है PYQ की, और यहाँ से बनाया गया है हमारा कंटेंट, एंड देन यू आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग। बाकी ये कितना आसान है मैड वाले बच्चों के लिए, ये शायद मेरे से बेहतर ध्रुव सर बताएंगे, बट खैर द पॉइंट इज दैट दिस इज वेरी वेरी सॉल्वेबल। Now we'll move on to the things discussed from the Focus magazine. You'll see a repetition of questions. हमने क्लास में for your kind reference we've also drafted a table. You'll be able to see that. But anyway, so Focus में cover कर लिया. We've discussed this before as well. Also part of directly Focus में था कि RBI की income और expenditure directly उठाया हुआ था और उससे solve हो जाता। यस सर, और ब्लू बुक में भी था और नाउ फोकस में भी था। अब जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे कार्बन नॉन कार्बन मार्केट नॉन मार्केट अप्रोचेस एज इट इज कवर्ड इन आर्टिकल 6 वाला फोकस सर पूरा मतलब, सॉरी इफ आई एम एम्फसाइजिंग इट टू मच, बट दिस फील्स रियली गुड कि आप मतलब जिस चीज के विजन के लिए खड़े थे वो पूरा हो रहा है। सर आप देखिए, सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट 6.4 एंड कंट्री टू कंट्री ट्रेड 6.2, और सर एज इट इज यहाँ पे दिया है इसने
कि प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट जो है वो यहाँ आर्टिकल पे 6 में दे रखे हैं inter-country और इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज की बात दोबारा से आर्टिकल 6 में कर रखी है. कंट्री टू कंट्री ट्रेड सर वी हैव ऑलरेडी मेंशनड लाइक ओके आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ बट ठीक है चलिए. Next is the AI Action Summit that we covered. If you have a look at it, यहाँ पे PM Modi co-chaired the AI Action Summit. Was directly mentioned as a part of our focus. Completely solvable क्योंकि उसके नीचे हमने all the countries भी also we have mentioned. Yes. And you could have arrived the answer. यस पूरा दे रखा है सर. यहाँ पे हमने देखे ना यूके और साउथ कोरिया ये सब चीजें हमने लिखी हुई है सर यहाँ पे कि यूएस यूके अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके डिक्लेरेशन और हमने बता रखा है कि कौन कौन सी कंट्रीज ने साइन कर रखा है. यूएस एंड यूके एब्सटेन्ड फ्रॉम साइनिंग. दिस वाज एज इट इज रिटन यूएस एंड यूके एब्सटेन्ड फ्रॉम साइनिंग और इसने यही दो कंट्रीज देके पूछा कि उन्होंने साइन कर दिया. कंप्लीटली ब्रिलियंटली सॉल्वेबल क्वेश्चन सर. जाके मतलब बच्चे कैन हैव अ लुक एट द Focus magazine again if they are still Again at doubt. MSP I think we have covered this before as well. वो focus में भी cover किया था MSP में कौन-कौन है क्या-क्या है and we've Yes sir, दो जगह ये चीज covered है. Yeah, Yeah, this is what I was talking about. So look at this here, look at this here. मुझे अभी भी याद है, बच्चे बताएंगे comments में कि कैसे Majorana won by Microsoft, Willow by Google. I felt so proud when I saw this particular question कि कैसे as it is सिर्फ अगर मेरी एक लाइन बच्चों ने सुनी है, इस कंटेंट की एक लाइन पढ़ी है तो डायरेक्टली ये particular question solved है. Like big hats off to Imam for making for leading such a focus magazine जो इतना बेहतरीन कंटेंट बना के देती है. This is the quality of people that we have sir. भले ही ठीक है. नेक्स्ट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. आई थिंक इसमें और इसमें किसी को डाउट नहीं था. फर्स्ट में था मैन मेड था या नहीं था. एंड यू सी वी हैव डायरेक्टली टॉक्ड अबाउट इट बीइंग लैबोरेटरी इंजीनियर्ड. ऑब्वियसली मैन मेड होगा. सो सर ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया था फोकस मैगजीन से. तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स रिपीटेड है सर. यहाँ पे देखिए यूज इन ट्रीटिंग ऑफ नीपा वायरस एज इट इज नीपा वायरस. देन यहाँ पे बात कर रखी है स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन और यहाँ पे हमने फिर से वो इम्यून सिस्टम की बात कर रखी है कैसे उसको हेल्प करता है कैसे उसको स्टिमुलेट करता है. बिल्कुल एज इट इज पॉइंट बाय पॉइंट कवर्ड है सर. दिस इज अमेजिंग. साथ साथ में आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीआई कहाँ पे यूज हुआ है. तो मुझे अभी भी याद है सर कि मैंने बच्चों से लेक्चर में लाइव बोला कि अच्छा बताओ कौन कौन सी कंट्रीज हो गई. सिंगापुर, भूटान, यूएई, कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, श्रीलंका, मॉरिशस, ऐसे करके आंसर अगर आप देखेंगे तो एज इट इज क्वेश्चन है. हर एक कंट्री सर, हर एक कंट्री वी हैव कवर्ड सर. यस तो बिल्कुल मेरे को याद है मैंने लेक्चर देखा था उसमें आपने वापस लिखवाए. यस वापस से सर मैंने बोला है कैसे तो बताओ कौन कौन सी कंट्रीज कवर हो गई एंड दैट वाज एज इट इज रिपीटेड सर. सो फेल्ट रियली प्राउड ऑफ द टीम and really proud of our students who have like supported us on this This is again particular a question thing. that we've discussed before, part of Focus magazine as well. Yes. This is also a beauty of how you design content. Yes. आपको subsequent revisions में भी easy हो रहा है. We are also covering it in the Focus again, despite covering it in the blue book. क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस पता है सर हमें. और दूसरा सर मैंने बच्चों को बताई थी ये चीज कि हम टीम्स को अलग रखते हैं. जो फोकस की टीम है, जो ब्लू बुक की टीम और जो अपसर्च की टीम है, तीनों अलग हैं. ऐसा नहीं कि हमें अपने ही मटेरियल से क्वेश्चंस निकलवाने हैं अपनी टेस्ट सीरीज में ताकि बच्चों में फोमो क्रिएट हो, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो. नहीं, हमने टीम्स को अलग अलग रखा है. दैट इज हाउ वी हैव डिजाइन्ड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कि सही लोग लेके आओ, उनको इंडिपेंडेंस दो एंड दैट इज व्हाट दे डिलीवर. नेक्स्ट इज एज दिस पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना. उसके बारे में पूरी मिनिस्ट्री इज आज देयर. वी हैव कवर्ड द मिनिस्ट्री. 1 करोड़ फैमिलीज, अगेन 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स एंड देन यू टॉक अबाउट स्किल्ड मैन पावर वगैरह, वो भी इसमें इजीली कवर्ड है. ये सब पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्वेबल क्वेश्चन फ्रॉम जस्ट द फोकस मैगजीन. Next is talking about BIMSTEC. BIMSTEC, we've highlighted the as it is things that are asked. 7 member states. Dhaka Declaration, talking about it being established there. और फिर कौन कौन सी कंट्रीज है, टूरिज्म है या नहीं है, all covered it here. सर मैं इसके बारे में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कुछ और भी बोलना चाहूंगा. आई स्टिल रिमेंबर टेलिंग स्टूडेंट्स कि मैं टीम एक बहुत ही पतली आपको स्कीम्स की बुकलेट बना के देगी, उसके बाहर से स्कीम नहीं आएगी. एंड सर as it is Muft Bijli Yojana, from that particular thing to the UPSC paper, a full circle has been created, and I'm so proud of the team here. Sir, even chess Olympiad covered sports में. एंड सर एक क्वेश्चन था खो खो का. मुझे इमाम ने बोला कि उसने अपनी शॉर्ट लिस्ट वाली उसमें लिख लिया था वो, एंड दैट ही somehow missed, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे आ गए तो वो somehow missed it in the book. नहीं तो वो खो खो वाले भी हमारी थीम में था. तो रियली सॉरी फॉर दैट. एंड इमाम अगली बार और भी ध्यान रखेगा और खो खो भी इंक्लूड करके आएगा ताकि हर एक क्वेश्चन अगली बार. बट अगेन हमने इसमें अभिमन्यु मिश्रा वाला कवर नहीं किया था. वी केप्ट इट एज अ थीम ओनली. Yes. बट यस तो स्पोर्ट्स का थीम कवर करना भी एब्सोल्युटली, क्योंकि नहीं तो स्पोर्ट्स पे तो पूरी पूरी मैगजीन आने लगी है. बट नहीं, हमने था कि नहीं ठीक है चेस ओलंपियाड जितना इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उतना देंगे. अब वो जाके आगे प्लेयर का नाम पूछने लगे तो आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर दैट. मैं आज भी ये बोलूंगा हमारे कंटेंट से नहीं आया तो भी ये नहीं कि हम नेक्स्ट टाइम ये सब आप उसमें डंप करने लगेंगे. नहीं, वी बिलीव इन ट्रेंड्स, वी बिलीव इन पैटर्न्स, वी बिलीव इन एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन डिलीवर्ड हियर. ऑलराइट. The next is nature restoration law. मतलब I don't think ये किसी भी कंटेंट में कवर हो पाया होगा.
but you have a direct thing. European Parliament has approved EU nature restoration law, and you have your question like this. सर जिस दिन जस्ट प्रीलिम्स पूरा हुआ और आई वाज टेलिंग द स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर ये नेचर रेस्टोरेशन लॉ तो आपने एज इट इज कवर किया था मिसलेनियस में, और यहाँ पे लिखा भी था यूरोपियन यूनियन, और एज इट इज आ गया सर यूरोपियन यूनियन। तो लाइक कुडोस अगेन एंड थैंक्स टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने सर मतलब बाकी इंस्टीट्यूट्स को गालियां पड़ रही हैं और हमारे बच्चे हमें आके कमेंट्स में बता रहे हैं कि सर आपके तो फोकस मैगजीन से रेस्टोरेशन लॉ आया। So आप the feedback has been really good. I was a mentor in the previous batches. Even to the students who have not been able to make it, they have appreciated us. मतलब this is the first time that I am seeing कि किसी कोई make it through नहीं कर रहा है और बेचारे मतलब it's a question of their life, right? And they're not making it. Still they're appreciating us कि we have performed better than the previous years. हमारी आंखें खुल गई हैं, sorts हो गया, तो मतलब it's very highly बिल्कुल सर 35 से किसी बच्चे का 34 स्कोर आ रहा है, वो 78 तक स्कोर कर रहा है। ठीक है, मे बी उसका होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, वी आर नॉट द पीपल टू जज दैट, बट दैट स्टूडेंट व्हेन दे कम एंड दे टेल कि सर मैं सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि मैंने एक साल के अंदर अंदर इतना अच्छा परफॉर्म किया, जो डरता था पेपर जाने से, जिसके घर वाले बोलते थे कि तू रहने दे यूपीएससी, आई एम गोइंग सो क्लोज टू द कट ऑफ जस्ट बिकॉज आई फॉलोड प्रीवेल एंड आई फॉलोड द मेंटोर्स and they've regained that confidence in themselves कि we can do it. If not this year, probably next year. Absolutely. Now comes the beautiful Upsurge Test Series. So kudos to the Upsurge Test Series ki team, Aisha and Ashish for that, and obviously Neha ma'am for picking out such amazing themes and giving that to the team, to Aisha and Ashish. और उससे तो क्या hit questions आए हैं अभी आप देखेंगे. You will just have a look. As it is, if I think we've discussed this question, but again a part of Upsurge जो है Rajendra one covered ये श्री विजय वाला, as it is इसमें भी वापस कवर हो रहा है. Yes sir. तो ये back to back सर मतलब देखेंगे आप तो पेरियार वाला क्वेश्चन भी as it is Self back to respect back. movement, E.V. Ramaswamy Nekar, We Periyar. already said that कि हमने वो already बताया था. So these are snippets from our test Yes. series के questions and answers. That's it. अब जो एक 30-40 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है बस. बस तो डांसिंग गर्ल अगेन वाज कवर्ड क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद पूना पैक्ट वाला एज इट इज वाज कवर्ड, डिप्रेस क्लासेस वगैरह, अंबेडकर गांधी वो पूरा का पूरा कवर हुआ था। देन इसके बाद ये देखिए आप मत विलास, विचित्र चित्त, बोथ द बुक्स एंड गुंदभर गुनगुनभर, तीनों की तीनों बुक्स हैव बीन गिवन हियर। तीनों की तीनों बुक्स, तीनों की तीनों टाइटल्स, रिलीज हुए तीनों के टाइटल्स मत विलास और आपका विचित्र चित्त और आपका गुणभार गुंदभार, तीनों के तीनों टाइटल्स किसने एज्यूम किए थे? महेंद्र वर्मन वन ने, एंड दैट हैज बीन रिपीटेड, तीनों टाइटल्स रिपीट हुए हैं। दैट इज द पावर ऑफ द अपसर्ज टेस्ट सीरीज। लेट्स मूव अहेड एंड अगेन दीज वर जस्ट सम टेस्ट्स, है ना, ये कोई 35 40 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज नहीं थी। 10 FLTs 10 FLTs and nearly 10 I guess advanced sectional tests. Just that 7 advanced sectional tests. So less than 20 tests and this is the output. अभी आप और भी देखोगे. Let's move ahead. नेक्स्ट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, तो मतलब हमारी ब्लू बुक में बहुत ही अच्छे से था, बट यस FLT 4 में भी ये मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द अपसर्ज में वी हैव ट्राइड टू कवर कि लिथियम ट्रायंगल क्या है, तो लिथियम कहाँ मिलता है. या next is on pardoning power, again FLT 4 question 26, a theme from FLT 4 directly. Article 72 talks about the pardoning power of the president, वही है. Next is on, I think we've also discussed this question Yes. before, but yes, sectional advanced test polity question number 77. Yes. All three statements have been completely covered here as well. 10th schedule anti-defection wala, or whether or not the polity word is mentioned there. See, 10th schedule, it's been mentioned that three of our tests, FLT 2, FLT 5 and sectional advanced 1. और तीनों के हमने स्निपेट्स में डाले हैं, तो तीन जगह ये पर्टिकुलर चीज हमने कवर करी है। क्यों कर ली भाई हमने कवर, है ना? हम भी दे सकते थे बहुत सारा बड़ा हैंड आउट, हम भी दे सकते थे आपको हजारों पेजेस और हजारों लेक्चर्स, और बोल सकते थे कि नहीं कहीं ना कहीं से तो कुछ आ बाकी जाएगा। जगह ये डिस्कस होता है, मतलब आई वाज सम टाइम बैक अ पार्ट ऑफ सम अदर टीम एज वेल, तो वहां पे डिस्कस होता है कि आप टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन राइट, आप थीम डाइवर्सिफिकेशन करो, डू नॉट रिपीट द थीम. फॉर एग्जांपल हमने FLT 2 में कवर कर लिया, Yes. तो हम यहाँ आकर बोल सकते हैं कि FLT 2 में आ गया है, तो अब आप दूसरा लाओ ताकि आपके चांसेस टू क्लेम इंक्रीज. बट यहाँ पे आप देखो कि वी पिक्ड अप सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, वी रिपीटेड इट थ्राइस. Yes, so like talks a lot about the word that I used initially, student centric, exam oriented, that's it, full stop, finish. तो ना इसलिए कि बाद में जाके बहुत कुछ क्लेम किया जा सके, बट बहुत स्पेसिफिक पढ़ाया जा सके, तो उससे पूरे के पूरे सब चीजें सॉल्व हो रही हैं. देन अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास क्या पावर है, ये भी हमारे अफसर्स की टेस्ट सीरीज से आया है. कंप्लीटली सॉल्वेबल क्वेश्चन है हमारे ही सोर्सेज से. देन अगेन पंचायत हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, अगेन कवर्ड इन द अफसर्स टेस्ट सीरीज 3 times. yes in FLT 1, in FLT 6 and in the section advance also. तो section advance में बस 100 क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पे भी अगर ये क्वेश्चन, तो आपको मतलब you can just imagine the kind of quality that the thing would have been delivering. फिर उसके बाद देन बिमस्टेक वाला क्वेश्चन अगेन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, हमने वापस से वो चीज कवर करी है अपनी टेस्ट सीरीज में. नाउ ये सर ने डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चंस मैं सर को ही दूंगा हैंडल करने के लिए.
सर मेरे को याद है, मतलब हमारा एज इट इज इफ यू हैव अ लुक एट इट, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे भी शायद एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड. तो And आई as यूज्ड it टू is, डायरेक्ट दोस क्वेश्चंस ना मैड की तरफ, मतलब मैं जब डिस्कशन करता था हाँ. तो मैंने क्लास में बोला था कि अगर मेरे को खुद ही जब मैं अटेम्प्ट करा था पेपर, आई वुड हैव मार्क्ड इट रॉन्ग कि दो फैक्ट है, बट हमारी टेस्ट सीरीज से हमने सीख लिया है कि टर्मरिक का Yes. फैक्ट है तो उसको याद करेंगे एज इट इज, द वर्ड हैव बीन रिपीटेड एज इट इज. एंड सिमिलर इज द केस विद स्टेट्स. आप देखो स्टेट्स भी एज इट इज इसमें रिपीटेड मिलेंगे. हाँ, मैंने देखा भी ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एंड दिस इज डायरेक्टली पिक फ्रॉम पीआईबी, तो इसलिए थोड़ा डायरेक्टली मैच भी हो गया था, बट यस. Absolutely amazing, sir. Amazing, amazing. नेक्स्ट इज अराउंड ब्रिक्स. आई थिंक दिस वाज पहले ही एफएलटी था हमारा सर्च का, उसमें हमने इसको अच्छे से कवर किया था. तो ये सॉल्व हो जाएगा उससे. उसके बाद हमने इकोनॉमी सेक्शनल, ये जो प्राइमरी फिस्कल रेवेन्यू है, वी आल्सो ये ट्राई टू हमने already रेप्लिकेट देख दिस लिया. इन द अपसर्च क्वेश्चंस. उसमें भी Yes. से हो रहा था, दोनों क्वेश्चंस थे. Next is MSP. I think we've covered this in the blue book, covered this in the focus, Yes. and now we are also covering it in In the the upsurge test series, absolutely. बाकी वो सर सूर्य घर भी अपसर्च के एनवायरमेंट के सेक्शन टेक्स्ट से आया था, और एज इट इज वहाँ पे भी 1 करोड़ Focus सोलर on टू. सर यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, कैसे बहुत जगह इस बात पे डिबेट चल रही थी कि कैसे नहीं हाउस होल्ड नहीं रेजिडेंशियल. सर लिखा हुआ है 1 करोड़ सोलर रूफटॉप्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर, एंड एज इट इज ये 1 कीवर्ड करोड़ रिपीट हुआ है सर. वही 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इन द. यस, एज इट इज कीवर्ड रिपीट हुआ है सर. और स्किलिंग वाला भी यहाँ पे 3 Yes, 3 lakh skilled manpower, sir. As it is तो 3 lakh skilled manpower. That is the. और सर ये बस इसीलिए है because we have given right people the right thing to do, and they have delivered on the quality. So proud of the entire team. So proud of our students. नेक्स्ट वो एसेट लायबिलिटी हो रहा था. आई थिंक पहली स्टेटमेंट से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, बट थर्ड से वो सॉल्व हो रहा था. बट यस, वी हैव मेड अ अपसर्च FLT2 के एक्सप्लेनेशन में वी पिक दिस चार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. उसका ड्यू क्रेडिट टू एनसीईआरटी, वी पुश्ड इट एज Definitely. वेल, और एज इट इज ये आ भी गया. और लिखा है उस पे एनसीईआरटी पब्लिश. मुझे अभी भी याद है सर, मैंने लाइव FLT2 के डिस्कशन में लाइव ये पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अगर एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हमारा liability open mock घटेगी तो क्या test होगी. था. ओपन मॉक से आया है. और कोई था जो बोल रहा था कि ओपन मॉक के हमारे कुछ क्वेश्चंस पिक करके कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्यों बनाते हो. अब जाके उनको बोलो कि मेजोराना 1 फिर क्यों आ गया. तो ओके. नेक्स्ट अगेन वो एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कवर्ड इट एज अ पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी सेक्शनल एडवांस टेस्ट. एब्सोल्युटली सर. देन डायरेक्ट एयर कैप्चर ऊपर भी कवर किया था. यहाँ पे अपसर्च FLT3, आई रिमेंबर उसमें मैंने थोड़ा डिस्कशन भी किया था कि एप्लीकेशन क्या हो सकती है, बट वहाँ पे वही मैड ओरिएंटेड था. तो Yes, sir. ऑल एप्लीकेशन की तरफ, तो उस ल्यू से अगर आप देखेंगे तो कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच अगेन एप्लीकेशन बेस्ड. तो वहाँ पे भी थोड़ा Yes. एक्सप्लेन किया गया था कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड डायरेक्ट एयर कैप्चर में पॉजिटिव चीज है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन फोकस होता है. I want something to people and students to understand here कि हमारे लिए बहुत आसान है यार कि हम चैट जीपीटी पे डालें कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते थे, या गूगल पे डाल के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते थे, और जाके आपको एक बहुत लंबी लिस्ट दे दें. बहुत आसान है हमारे लिए वो करना, और फिर दिखा देंगे कैसे रिपीट हुआ है. नहीं, हमने सिर्फ इतना दिया यार सीडीआर के बारे में. एंड व्हाट सर इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं, उनको बस कंटेंट उनके ऊपर थोपते नहीं है. हम स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन लगाना सीखिए, हमसे कॉन्सेप्ट हमसे पढ़िए, और फिर उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो हमसे सीखिए. सो दैट इसके जगह 4 स्टेटमेंट और भी आ जाएंगे तो हमारे बच्चों को पता होगा कैसे सॉल्व करना है. हम कोई एंड नहीं है ना उसका. दिस इज द सेम थिंग दैट आई एम टीचिंग इन मेंस एज वेल कि भाई कोई एंड नहीं है. वो कल को पूछेगा कि पल्लवा के ब्रिक्स पे कौन सी आर्ट बनी है, आप कब तक रटते बैठोगे, कब तक हजार पेजेस के हैंडआउट्स पढ़ते बैठोगे जस्ट बिकॉज हमें कल को क्लेम करना है. नहीं, वी आर नॉट हियर टू डू दैट. वी आर हियर टू बी अ स्टूडेंट सेंट्रिक, एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि लोगों के जो वो गाइडेंस का गैप है ना बस वो कम हो सके, लोग सही चीज पढ़े, एबल बने. टीच अ फिश टू स्विम, दैट्स इट. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is on constitutional bodies. We've covered this as a part of FLT7 as well. कि 263 में इंटरस्टेट काउंसिल की बात होती है, और ये सब. यस सर. नाउ ये सर एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक हमने आपके लिए बनाया है. सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन सोल्व्ड. तो हमने आपको बताया कि कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी जगह पे सॉल्वेबल था. तो आप देखेंगे कि तीनों जगह पे भी क्वेश्चन सॉल्वेबल थे. एंड आई विल रिपीट अगेन, मैड इंक्लूडेड नहीं है, नहीं तो शायद ही कोई बॉक्स होता जो यहाँ पे कवर्ड ना होता. Not saying it out of arrogance, but out of utter humility and utter humbleness. God has been really kind to give us the best people, the best students, and keep supporting us, keep supporting Understand UPSC. You can have a look at this entire table. हमने 100 के 100 क्वेश्चंस के लिए ये बनाया है. बाद में एक मैट्रिक सर ने ड्रॉ करी, एक पैरामीटर सर ने ड्रॉ किया है, तो वो सर एक बार बताएंगे. So ऊपर जाएंगे, आप ऊपर देखेंगे. So we divide into 3 columns. First is the blue book.
कि ब्लू बुक में से कौन कौन सा क्वेश्चन कवर्ड है. सो जो क्वेश्चन कवर्ड था उसके सामने टिक है. देन वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड देन वी हैव फोकस. दीज आर द थ्री पैरामीटर्स दैट वी हैव टेकन. अब नाउ लास्ट में वी हैव मेंशन्ड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो 48 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वर बीइंग डन बाय economy blue book alone. Upsurge said 22 and focus said 12. 12 is again a very big number of focus because it was just and nearly current affairs oriented, plus the quality of the limited number of pages that we were given to सर complete लिटरली it. वो इतनी पतली सी बिल्कुल सर. फोकस मैगजीन है, वहां से क्वेश्चंस अगर ऐसे डायरेक्टली सॉल्वेबल हो रहे हैं तो स्टूडेंट कम्युनिटी हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको अब मार्केटिंग गिमिक्स और बहुत सारा वो जो इन्वेस्टर फंडेड पैसा है उसकी तरफ भागना है, या अपना टाइम, अपना प्रीशियस टाइम, अपनी प्रीशियस एनर्जी, अपने प्रीशियस ईयर्स बचाने, एंड यू हैव टू फोकस ऑन द राइट थिंग. जस्ट दैट द क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. सर प्लीज. यहाँ पे सर हमने थोड़ा ना जैसे टोटल ऑफ ब्लू बुक, टोटल ऑफ अपसर्ज और टोटल ऑफ फोकस किया था. सो देयर माइट बी सम ओवरलैपिंग क्वेश्चंस. Right. सो वी केम आउट विद अ जेन्युइन एंड अ ट्रू फिगर विदाउट ओवरलैपिंग. सो 58 क्वेश्चंस अलोन were being able to be solved by a quantity. Amazing. This is a testament to the amazing teachers, the amazing faculties, including Dhruv sir, all the faculties, all the mentors. This is a testament to the Understand UPSC team. And I personally take this responsibility to thank each and everyone for this past 1 year, which was filled with a lot of hate, a lot of self-doubt. But ताले लगा दिए अपने लोगों के ज़बान पे. Literally, you have sealed people who were speaking wrong and who were speaking wrong facts. जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे वो सब आपने बंद कर दिया है. कोई भी एक भी बच्चा अगर अंडरस्टैंड यूपीएससी पे आपको डाउट करता दिखे, शेयर एंड पूछिए कि और कहाँ होता है, किस इंस्टीट्यूट में होता है ऐसा, एंड दे विल गेट द रिप्लाई. ये सेम चीज़ मेंस में करके दिखाएंगे, ये सेम चीज़ आपकी प्रिपरेशन में करके दिखाएंगे, एंड यू विल रियलाइज व्हाट अंडरस्टैंड यूपीएससी इज. गारंटी लेके बोल रहा हूँ, not a short guarantee, guarantee. All right, with that we'll conclude. Thank you so much for giving your precious time. I know that your time is important and I know that acha, okay, yeah, so सर लास्ट में हमने टेस्टिमोनियल्स ऐड करवाए थे प्रीवेल प्रोग्राम से. wow, तो जस्ट किसी को एक बार रीड कर लेता हूँ सर. स्टूडेंट्स ने you can pick up any. I think all of them are equally ओके well. तो जस्ट सर इसमें जैसे बच्चों ने ओके दिस लिस्ट है सर, ये तो पूरी जीएस में कितना, सीसैट में कितना एज पर द विजन की, और मैथ सेशंस डिड अ फैबुलस जॉब. I even heard your voice in my head saying Mark Madan Mohan Malviya because there is a huge gap. तो वो पूरी की पूरी चीजें सर, सिंसियर अप्रिसिएशन टू द ध्रुव सर एंड यूएस टीम. फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चों ने अपना स्कोर मेंशन कर रखा है. ये सब बच्चे हमारे साथ वापस से यहाँ पे आके मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं. तो लाइक आई एम रियली 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 हैप्पी, रियली हैप्पी. आप मतलब एंड नहीं होगा, एक काम ये देखते जाइए, आप स्कोर्स देखते जाइए बस बच्चों के. दिस इज व्हाट दे परफॉर्म. आई एम सो प्राउड ऑफ दीस गाइस, आई एम सो प्राउड. 115, 110. ये सर ये देखिए ना, टिल 2 months बिफोर आई यूज्ड टू स्कोर 55 to 60 इन द एफएलटीज, एंड नाउ ये बच्चे सर सब क्लियर कर रहे हैं. दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो 116 अमेजिंग. FLT. ये मेंटोरशिप सर ट्रू मेंटोरशिप है. वो दिखावे वाली मेंटोरशिप नहीं है कि ठीक है बस आपने लाके कोई चेहरा खड़ा कर दिया और उसके अंदर फिर आप चीजें चला रहे हैं. दिस इज ट्रू टेस्टामेंट टू द मेंटोरशिप. हैट्स ऑफ टू द मेंटोर्स फॉर बीइंग द रियल सपोर्ट विद द स्टूडेंट्स. किसी बच्चे का जब 35, 35, 40 स्कोर आता है ना और वो कैसे टूट जाता है, वो हमारे मेंटोर्स को पता है. आज मुझे पता है जब हमारा ओपन मॉक हुआ, फर्स्ट एफएलटी हुआ, और उसके बाद कैसे मेंटोर्स जो हमसे मिलने आए हुए थे वो बोल रहे थे सर भर गए हैं डीएम्स, बट they took students right out of that pit and made them stand. जहां पे दूसरी कोचिंग्स को ये मिल रहा है कि वो लास्ट के 1 महीने में भी डंप करते जा रहे थे लेक्चर्स, हमने ना जाने कितनी पहले हमने 4 राउंड ऑफ रिवीजन कराए हैं उतने टाइम में. तो ठीक है, एक बार सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट अस जस्ट एक बार मैं इसको बस स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि लोगों को डाउट ना रह जाए. कोई सेक नहीं है, इट्स ऑल आवर हार्ड वर्क. हमें भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए. यस सर, एब्सोल्युटली. आप इसमें से कोई भी सर कुछ भी पढ़ोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड what particular thing is. I'm so proud of the students. Let's just keep scrolling these things. आपको देखेंगे या तो दिल बने हुए हैं या तो हाथ जुड़े हुए हैं. मजा ही आ गया सर, मतलब अमेजिंग 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 अमेजिंग. तो किसी भी जगह पे आप इसको पॉज करिए, इसको पढ़िए, एंड यू विल रियलाइज कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सच पर्टिकुलर बिग थिंग. टेस्टिमोनियल्स. देखिए सर बच्चे इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखा है एक बच्चे ने, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइप किया है. दिस इज निशांत सर. आई एम सो प्राउड ऑफ द एंटायर टीम, सो प्राउड ऑफ द एंटायर टीम. अभिषेक सर के लिए, निशांत सर के लिए वापस से आई एम सो प्राउड. 98 मार्क्स आ रहे हैं ध्रुव सर के लिए, इमोशनल हो रहे हैं बच्चे. आई एम सो प्राउड सर, आई एम सो प्राउड ऑफ द टीम. अभिषेक सर के लिए आ गया है. दिस इज सच अ बिग टेस्टामेंट टू द काइंड ऑफ थिंग वी हैव डन. यार निशांत सर हैशटैग में आ गए. अमेजिंग 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 अमेजिंग. ये सब निशांत सर ध्रुव सर.
haters will say that it is paid. दैट इज व्हाई हमने फॉरवर्ड भी उससे किया, एक शायद मैंने अपनी आईडी से कर दिया था तो उसमें ध्रुव आ गया था, बट वी हैव Yeah, just look given at the this. Forwarded from testimonials. Nihal, for from Chinmay, for from Vishwa, for from Sagar. इतना पैसा अगर पे करने के लिए होता तो यहाँ नहीं होते आज. For from Akshit, Shubham, amazing, just amazing. ये राहुल सर हैं. ये राहुल सर, रामनाथ जूनियर इज राहुल सर. तो 111, amazing. Pranjal, Mehnaz. I remember Mehnaz used to have जाके She very used to be the topper of yeah, our one of the upstarts. toppers in the Upsurge Test Series later. First 10 में तो रहती थी. Yeah, first 10 में रहते I थे. think she's scoring around 120 this time. I checked the Wow, poll. amazing, amazing, amazing. कितने प्यारे बच्चे हैं, बाकियों के लिए भी विश कर रहे हैं कि उनका भी क्लियर हो जाए. This is so sweet. बहुत ही शानदार. So yeah, utmost respect to each and every mentor who Sahil sir, utmost respect to each and every mentor who have given their time, Abhishek sir, and their energy अपने beautiful knowledge को share करते हुए. Amazing, amazing. This doesn't end here. This is just some of the portion. This doesn't end here. ये आप हमारे बच्चों से बात करेंगे तो आपको रियलाइज होगा. जो भी बच्चा मिलने आता है मैंने उससे यही पूछा है कि सच सच बताना प्रीवियस से फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड बच्चों की आंखों में आंसू देखे मैंने उस लाइन के बाद कि it has changed the way they are prepared for prelims. Thank you so much. Thank you. This was really an emotional thing, and touchwood, ऐसी चीजें आगे होती रहेंगी. Thanks to these students for their support. Thanks to you for watching this. And सही जगह रहिए, सही चीज पढ़िए, लोगों की पॉलिटिक्स और बकवास से बाहर निकलिए, पेड हेट से बाहर निकलिए. प्रूफ्स हैं हमारे पास कि जो हेटरेड है, जो हेट कमेंट्स हैं, वो पैसे देके करवाए गए हैं बहुत जगहों पे. हमारे पास प्रूफ है. जिस दिन कहोगे सामने आ भी जाएंगे. सो डोंट फोकस. अपने काम पे हम फोकस कर रहे हैं, हमें वो करने दीजिए, और विल कीप डिलीवरिंग द वे ऑफ डिलीवर्ड. थैंक यू सो मच. दिस इज सत्यम जैन, दिस इज ध्रुव सर, साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन विद सच ब्यूटीफुल कंटेंट, सच ब्यूटीफुल डिलीवरी. जय हिंद, वंदे मातरम. Have a blast, and even if this year you're not making it through the prelims, result आने वाले, even if you're not making it through the prelims, remember you have been made more able than before. ये बात याद रखिएगा, आपकी मेहनत कहीं भी खराब नहीं जाती है. आप जब अगले prelims की तैयारी करेंगे तो जीरो से नहीं करेंगे. अगर आप 72 पे हैं तो आप 72 से आगे बढ़ेंगे. इस बात को भूलिएगा मत, इस बात को मत भूलिएगा. एक पेपर आपको सेल्फ डाउट ना कराए, बस ये बात याद रखिएगा. बाकी हम आपके लिए यहाँ पे हैं. वी आर मीटिंग स्टूडेंट्स थ्रू एंड थ्रू. तो कोई भी चिंता है, कोई भी दिक्कत है तो हमसे शेयर करिए. वी आर हियर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.